जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 10:30-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਨਾ 85 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਇਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, 2-2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਝੜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਡਮਰੂ ਹੁਣ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 10:30-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਨਾ 85 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਪੱਥਰੀ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਇਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, 2-2 ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਝੜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਡਮਰੂ ਹੁਣ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪਕਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਕਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ,
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੀਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਭਵਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੈਕ ਭੇਜਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੇਲਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੋਕਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਓਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਨੇ ਦਿਨ ਓਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਟੀ 'ਚ ਓਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣੇਗੀ ਓਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ 7 ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, 7 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो मैं आज का गुरु जी का मैसेज बता देती हूँ। गुरु जी कहते हैं, आंटी तूने मुझे काफ़ी इग्नोर कर लिया, आज मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुझसे मैं जानता हूँ धन की बड़ी आवश्यकता है। अगर तू चाहती है तेरे घर में परमानेंट लक्ष्मी जी का वास हो जाए तो आज मेरी इस ब्लेसिंग को गलती से भी इग्नोर मत कर। मैं देख सकता हूँ तू इसे अभी पढ़ रही है। बता मुझे क्या जाता है तेरा। एक शुक्राना करने में उल्टा इससे तेरा ही फायदा छुपा होता है। तो काफ़ी समय से सुख शांति से कोसों दूर है, वो भी मैं पलक झपकाते ही तेरे जीवन में डाल सकता हूँ। लेकिन पहले तू वो कर जो आज मैं तुझे करने को बोल रहा हूँ। इसे हंसी में मत ले, इससे आज मेरी कृपा का ढेर सारा फल छुपा हुआ है जो तेरी किस्मत को हीरे से जैसा चमका सकता है। वक्त का मैं शुक्राना कर इसे मेरे भक्तों तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मैसेज गुरु जी जो मुझे देते हैं, जो मैं अपने सत्संग में बोलती हूँ, संगत जी ये ना समझिएगा ये एक सत्संग नहीं है। संगत जी ये भी एक सत्संग है। एक समय ऐसा था इन मैसेजेस को मैं इग्नोर करती थी, मैं शेयर नहीं करती थी अपने सत्संग में। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज भी शुक्राना सत्संग ही है ना संगत जी, हम सभी संगत के लिए। तो पहले मैं मैसेज नहीं भेजती थी तो गुरु जी मुझे ऐसे मतलब मुझे बहुत डांटते थे, मुझे ऐसे मैसेज भेजते थे कि तुम मेरे मैसेजेस को संगत तक नहीं पहुंचाती, इग्नोर करती है। अगर संगत जी वैसे तो हर संगत के पास गुरु जी अपना खुद पर्सनल मैसेज खुद टेलीपैथी भेज सकते हैं, लेकिन संगत जी अगर किसी से संगत गुरु जी करवा रहे हैं ना तो गुरु जी सेवा ले रहे हैं। शायद मेरा कोई कष्ट काटना चाहते होंगे, मेरे कोई कर्म काटना चाहते होंगे, इसलिए गुरु जी मुझसे मैसेज सभी संगत को पहुंचवाते हैं। तो संगत जी ये था आज का गुरु जी का मैसेज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये मैसेज मेरे लिए भी है। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, इतना पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। संगत जी कल मैंने सत्संग सुना, वो आंटी जी बता रही थी कि एक ऐसी शब्द है जो अब हमें आज से रोज़ गुरु जी को बोलना है और इससे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए ज़रूर देखेंगे। संगत जी गुरु जी को बोलना है, जब भी मेरे घर में खुशी हो सबसे पहले आप शामिल हो, जब भी मेरे घर में कोई संकट आए दीवार बनकर आप खड़े रहो। ये हमें रेगुलर 7-8 दिन तक गुरु जी से कहते रहना है। वो आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि आप खुद अपनी लाइफ में परिवर्तन होते हुए देखोगे। शायद वो चीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीज़ परिवर्तित होती हुई ज़रूर देखी होगी, इसीलिए उन्होंने ये मैसेज किया है। तो मैं सभी संगत को भी मैंने इसीलिए मैसेज शेयर कर दिया कि मैं मेरे साथ साथ सभी संगत का भला हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अपनी सेवा देने का शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेजेस देने का शुक्राना, इतने पॉजिटिव सत्संग सुनवाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूँ महाराज आपका उतना ही कम है। ऐसी पॉजिटिव मैसेज देते रहिएगा गुरुजी महाराज, अपनी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत, जय गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी। ये मेरा 2 अगस्त दिन शनिवार का शुक्राना, संध्या वेले का 6:15 पे कर रही हूँ। जय गुरु जी। प्यारी संगत, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना, हर बेले शुक्राना, सुबह का शुक्राना, शाम का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना बाबा, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, शुक्राना बाबा, हर पल का हर क्षण का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। प्यारी संगत, जय गुरु जी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे गुरुपिता कह रहे हैं काफी इग्नोर कर लिया तूने, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। गुरु जी माफ करना बाबा, मैं क्या करूं। मेरे गुरु जी सब जानते हैं और कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। अंतर्यामी हो आप तो, जाने जाओ बाबा। हर संगत का दुख दर्द आप सब जानते हो बाबा, आपसे कुछ नहीं छुपा है। संगत जी बाबा कह रहे अगर तू आज मेरी ब्लेसिंग को इग्नोर मत करना, तेरे घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी मेहर सब पर हमेशा बनी रहे बाबा। सारी संगत पर मेहर करना गुरु जी। रूपा कह रहे हैं कि शुक्राना करने से तेरा क्या जाता है, उल्टा तेरा ही फायदा होता है। जानती हूँ बाबा। आपका शुक्राना बाबा कैसे करूं मैं बाबा, आप ही करवा लिया करो बाबा। हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा लिया करो। वैसे तो मैं बाबा करती हूँ आपका शुक्राना, हो ही जाते हैं बाबा एक दो शुक्राना, लेकिन छूट भी जाते हैं बीच बीच में। इसके लिए माफी चाहती हूँ बाबा, क्षमा करना अपनी इस बेटी को। मेरे बाबा सब जानते हैं। कह रहे तू काफी समय से सुख शांति से कोसों दूर है। बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं कि अपनी बेटी का क्या है क्या नहीं है, सब आपसे कुछ छुपा नहीं है बाबा। मेरे पिता कह रहे हैं कि मैं पलक झपकते ही सब कुछ डाल सकता हूँ तेरी झोली में। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। रोम रोम से, हर सांस से, दिल से प्यार भरा शुक्राना मेरा बाबा। अपने चरणों में स्वीकार करें गुरुदेवा। बाबा कह रहे लेकिन पहले जो मैं कह रहा हूँ वो कर। संगत जी बाबा बोल रहे हैं ऐसे हंसी में मत समझ। नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं हंसी में मजाक में लेती हूँ आपके आदेशों को बाबा सर आंखों पे। संगत जी बाबा का कहना है आज मेरी कृपा का ढेर सारा फल इसमें छुपा हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बप्पा, शुक्राना प्रभु, हे भगवान, हे भोले बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना। रोम रोम से, हर सांस का शुक्राना बाबा, हर आस का शुक्राना, हर विश्वास का शुक्राना बाबा,
हर पल हर घड़ी का शुक्राना बाबा, सुबह से शाम तक का शुक्राना बाबा, दिन से रात तक का शुक्राना बाबा, हर वेले शुक्राना बाबा, हर मिनट का शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे शुक्राना करके भक्तों तक पहुंचा दे बाबा। मैं सारी संगत को ये शुक्राना पहुंचा रही हूँ। सारे भक्तों के पास मैं अपना ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ बाबा। सबका कल्याण करना, सबकी झोलियां भरना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुपिता महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा मैसेज बाबा ने भेजा है कि आज जो दर्द है वो कल ताकत बनेगा तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा का कहना है कि तेरे हर आंसू मोती बन के झोली में गिरेगा। डर मत। जो लोग तुझ पे आज हंस रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में तेरा नाम चमकेगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी पे मेहर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुवर। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुदेव। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा। मैं नहीं जानती हूँ बाबा, अपनी बेटी पे मेहर करने के लिए बहुत 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 बाबा, दिल से जान से ज्यादा बाबा शुक्राना 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 बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करना बाबा। ये छोटा सा शुक्राना अपने चरणों में समर्पित करना बाबा। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना गुरु जी छतरपुर वाले चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। भैया बहुत अच्छे हैं, या आंटी जो भी शेयर करती हैं, बहुत जल्दी शुक्राने को शेयर कर देती हैं बाबा के चरणों में। इसके लिए उनको बाबा बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, अपार खुशियाँ देना, सबकी झोली भरना। जो शेयर करते हैं उनके घर भी खुशियाँ देना बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन। सभी के चरणों में सत सत नमन। मेरे गुरुदेव को अनंतम अनंतम शुक्राना, अनगिनत असंख्य शुक्राना बाबा। अरबों करोड़ों अरबों खरबों शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। जिसकी कोई सीमा ना हो बाबा, उतना शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी। सभी को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। आज मैं अपनी सासू माँ का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग सबसे पहले
हुआ गुरुजी का। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके बाद ये सत्संग हुआ। और भी गुरुजी के बहुत सत्संग हुए हैं। बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हमें गुरुजी हर रोज़ बचाते हैं। हमें बस वो ही बातें पता होती हैं, वही सत्संग पता होती हैं जो गुरुजी हमें फ़ील कराते हैं। गुरुजी जो हम फ़ील नहीं करते, जो हम देख नहीं पाते, उन सारी कृपा के लिए आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। 2 साल होने को आए हैं तब का ये सत्संग है। मेरी सासू माँ को पता नहीं अचानक से एक दिन क्या हुआ। सुबह सुबह उठ के नहा धो के वो पूजा घर में पूजा करके आई। वो भोले बाबा को मानती हैं। उनको सुबह सुबह दीप धूप फूल अर्पित करती हैं, जल चढ़ाती हैं। पूजा करके जैसे ही वो बाहर निकली, अचानक से उनको चक्कर आया, वो गिर गईं और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, उनके हालत देखी, काफ़ी गंभीर एकदम उनकी कंडीशन हो गई। उनके शरीर पे पता नहीं क्या एकदम से पित्ती सी उछलने लगी, पता नहीं क्या हुआ उनको एकदम अचानक से अच्छी खासी वो गिर गईं। डॉक्टर ने कहा इनको ले जाओ, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, पता ही नहीं लग रहा, इनकी नब्ज भी हाथ नहीं आ रही। फिर उनको पास में ही दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। लोकल डॉक्टर बुलाया था, उसने मना कर दिया। पास में उनको एडमिट कराया। डॉक्टर ने उनको जो ट्रीटमेंट देना था, स्टार्टिंग टीका लगाया, जो भी कुछ किया। फिर डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी, उनकी नब्ज ही नहीं थी। डॉक्टर ने कहा इनका बचना तो मुश्किल है, इनमें कुछ है ही नहीं, ना के बराबर ही है कि इनकी सांस भी नहीं चल रही। और ये बात सच है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। हमारे पास फ़ोन आया पड़ोसियों का। मेरे सास ससुर दोनों अकेले रहते हैं, गांव में रहते हैं वो अकेले। हम यहाँ पंजाब में रहते हैं और छोटे भाई वो चंडीगढ़ रहते हैं। हमारे पास पड़ोस में किसी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ना आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और आप लोग आ जाइए। तो फिर मेरा मन बड़ा बेचैन हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया। मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, एकदम मैं गुरुजी से अरदास करने लगी। मेरे मन में भी एकदम से ये आया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ गुरुजी ही कराते हैं। गुरुजी ने अरदास कराई, मैं गुरुजी से अरदास करके गई, गुरुजी ऐसा मत कीजिए, जीवन बख्श दीजिए, जो आपको ठीक लगे आप करिए गुरुजी, जीवन दान बख्श दीजिए गुरुजी, सही कर दीजिए। हम वहाँ गए, उनको एडमिट कराया हुआ था, तब तक भी उनको होश नहीं आया था, नहीं होश आ गया था। मेरे अरदास करने के बाद काफ़ी टाइम बाद उनको होश आया। डॉक्टर ने देखा इनको, अब अचानक से होश आ गया। डॉक्टर भी अचंभित हो गया, ये सब कैसे हो गया। अब किसी को नहीं पता, ये ज़िंदगी तो गुरुजी ने बख्शी थी। हम गए, उनको 3-4 दिन और एडमिट रखा गया हॉस्पिटल में। वो ठीक हो गई। जब मैं वहाँ पे कुछ दिन उनकी सेवा के लिए वहाँ रुकी, और जब मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मैं खाना बना रही थी। गुरुजी ने मुझे तब रोटी में मोर के इतने सुंदर दर्शन कराए। गुरुजी ने ब्लेस किया कि कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक हो जाएंगी। गुरुजी के मैसेज भी आए, गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए। उस टाइम में इतने ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती थी, पर गुरुजी ने जब कृपा करनी होती है, वो किसी भी तरह कृपा कर ही देते हैं। और मेरी सासू माँ ठीक हो गई। जब उनको होश आया, उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी सासू माँ ने बताया कि मैं यहाँ से कहीं चली गई थी और कोई आए थे मुझे लेने, वो मुझे दूसरी दुनिया में लेके चले गए। और वहाँ पे ना झूले पे एक बहुत सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने जब वो दूध लेके उनके सामने गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, इन्हें अभी और कुछ काम और काफ़ी काम हैं जो इन्हें पूरे करने हैं, इनको वापस भेज दो। तो मेरी सासू माँ ने ये सब बताया। भगवान ने, मेरे गुरुजी महाराज ने उनको ज़िंदगी ब्लेस की है उन्हीं की कृपा से। और मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तेरी माँ को 10 साल ब्लेस कर दिए।
10 साल की उम्र ब्लेस कर दी। गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी है और वो भोले बाबा की भक्त हैं, मानती हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है, ये सब कुछ जानने और मानने के बाद भी, वो भोले बाबा को मानने के बाद भी ब्लैक मैजिक करती हैं मेरे ऊपर। मैंने अपने सासू माँ के लिए अरदास की, मैं ये नहीं कहती मैंने कुछ किया, वो गुरुजी ही कराते हैं। और वो ही सासू माँ मेरे ऊपर मारण क्रिया, पता नहीं क्या क्या गंदी संदी चीज़ें कराती हैं। मैं गुरुजी से आज यही बोल रही थी, गुरुजी क्या आपने इसीलिए उनको वापस भेजा था कि इससे अपने कर्जे चुकाओ, इसको और परेशान करो। मैंने यहाँ से, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले ही एक ब्रेसलेट ब्लेस किया था सासू माँ के बीमार होने से पहले। वो ब्रेसलेट मैं सासू माँ के लिए लेके गई, उन्होंने 1 साल वो ब्रेसलेट पहना और मेरी सासू माँ धीरे 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 ठीक होती चली गई। उनकी मेंटली कंडीशन भी, मेरी 3 साल पहले मेरी छोटी ननंद भी एक्सपायर हो गई हैं। उनके बच्चे भी 13-14 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है। तो उनका भी, उनको काफ़ी सदमा लगा था, तो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी वो। और गुरुजी महाराज को उन्होंने 1 साल तक ब्रेसलेट पहना। उनकी मेंटल कंडीशन भी गुरुजी ने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी। उनको जो टेंशन, डिप्रेशन रहती थी हर समय, बेचैनी, चिंता लड़की के लिए, उन्होंने बताया मुझे कि अब मुझे वो सब नहीं होता है। गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। अब वो सब कुछ जानती हैं, अच्छे से वो जानती हैं। इसके साथ गुरु महाराज की कृपा है कि मुझे भी गुरु महाराज ने कितना ठीक किया है, ज़िंदगी भी बख्शी है, कि भोले बाबा की कृपा है। फिर भी वो लोग नहीं मानते, फिर भी आए दिन करते रहते हैं। मुझे गुरुजी से दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अब बताओ, जिसको गुरुजी महाराज शरण देते हैं उसको कोई दूर नहीं कर सकता। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं समझते हैं, कैसी लीला है ये गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं समझ पाती। सब कुछ गुरुजी करने कराने वाले हैं। गुरुजी कोई उधार होंगे किसी जन्म के जो वो लोग ले रहे हैं गुरुजी पर। मैं अब थक गई हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे उधार हैं, क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इन बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे गुरुजी, आप अब संभाल लीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आए दिन वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। जब उनका बस नहीं चलता है, वो कहीं पे पूछते हैं तो उनको बताया है कि ऐसे ऐसे ना इसकी रक्षा करते हैं, शक्ति इसकी रक्षा करती हैं, इसके भोले बाबा, इसके गुरु महाराज इसकी रक्षा करते हैं। तब भी वो नहीं मानते इसको। आप फ़ोन करके पूछते हैं ठीक ठाक खैर खबर, उनको ये जानना होता है हमारे किए कराए का कुछ हुआ है या नहीं। उनको सब कुछ यहाँ से अच्छी खबर मिलती है, वो बेचैन हो जाते हैं कुछ क्यों नहीं होता, जबकि सब कुछ जानते हैं कुछ क्यों नहीं होता। फिर वो लोग ना जाने क्यों नहीं मानते, पता नहीं मुझे। गुरुजी आप सब संभाल लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकालिए। मैं थक गई हूँ, उल्टे सीधे कामों से बहुत थक गई हूँ मैं गुरुजी, सह सह के थक गई हूँ। मैं आज भी उन लोगों का भला ही चाहती हूँ, मैं कभी नहीं चाहती गुरुजी मेरी वजह से किसी का बुरा हो। मैं अपने गुनाहों के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज, मेरी इतनी परीक्षा मत लो, मैं थक गई हूँ। ना मैं कल उनके लिए बुरा चाहती थी, ना आज बुरा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने ही मुझे उन लोगों से दूर किया है। गुरुजी कहते हैं जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं हैं, मैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने ससुराल वालों से दूर कर दिया है, सबसे दूर कर दिया है। आज मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। गुरुजी महाराज नहीं चाहते मैं किसी से बात करूँ, क्योंकि गुरुजी को अच्छे से पता है कि इसका भला कोई भी नहीं सोचता। पता नहीं कैसी नज़र डालते हैं वो लोग, कभी मुझे अच्छी नज़र से देखते ही नहीं। उनको कोई भी मेरा काम अच्छा हो ये मंजूर ही नहीं है। कैसी नफ़रत पाल के बैठे हैं पता नहीं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप रक्षा करते हो, बचाते हो। कितने तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इन सब से आप बचा रहे हो। उन लोगों को सद्बुद्धि देना गुरुजी। ये सब करना आसान है लेकिन इसको भुगतना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी कभी गुनाह कर रखे होंगे तो ही आज मैं भुगत रही हूँ। वो लोग पता नहीं इतना गलत क्यों कर रहे हैं गुरुजी, वो उनके खाते में जमा हो रहे हैं बुरे कर्म। सद्बुद्धि बख्शिए गुरुजी, बिना अपने कर्मों को भुगते पीछा नहीं छूटता है ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
गुरुजी हर पल मेरे साथ होते हैं, हर पल। उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतना सिखाया पढ़ाया कि ये जब से गुरुजी के पास जाने लगी है तब से हमारी बात नहीं मानती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। क्योंकि उन लोगों को पता है तब से ही हमारी चाल नाकामयाब हो रही है, कामयाब नहीं हो रही। पहले मुझे अपने इशारों पे नचा के रखते थे, मेरा माइंड कंट्रोल किया हुआ था, इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आता था। ना घर में बरकत थी, ना किसी चीज़ में। मेरा शरीर, मेरा फेस सब कुछ इतना बुरा कर दिया था ना, एकदम ब्लैक चेहरा मेरा, सारे बाल झड़ गए। इतना मतलब मुझे इतना मतलब ऐसे ना बदसूरत दिखाना चाहते थे, वो छुड़ाना चाहते थे कि हमारा लड़का इसको छोड़ दे। ना जाने क्या क्या चालें चलते हैं। गुरुजी ने बचाया हुआ है। और इन्होंने ना उनके सिखाए में आके मेरे हस्बैंड ने मुझसे लड़ाई की और गुरुजी को भी काफ़ी कुछ बोला। गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ उनकी मूर्खता के लिए। वो नहीं जानते आप महाशिव हो, भोले बाबा हो। उनके दिमाग में जो डाला गया उन पे वशीकरण है, वो भी वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में एक शब्द उनको सुनना मंजूर नहीं है। अगर वो रात कहते हैं तो रात है, दिन कहते हैं तो दिन है। अब गुरुजी उनको बाहर निकाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज भी गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए, चाय में ओम के दर्शन दिए, इतना सुंदर हार्ट बनाया। गुरुजी हर पल मेरे साथ होते हैं। चाय में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बटरफ्लाई की बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी हर पल कहते हैं मैं तो तेरे साथ हूँ, बस तू महसूस नहीं करती। ये बात सच है गुरुजी, आप हर पल मेरे साथ होते हो। इन बेचैनियों में, इन निगेटिविटी में कुछ समझ ही नहीं आता। मैं कितनी कोशिश करती हूँ गुरुजी कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, नहीं रह पाती हूँ मैं। मेरा मन जैसे मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। गुरुजी मुझे बाहर निकालिए इस सब चीज़ों से, मैं थक गई हूँ। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मुझे इन निगेटिविटी से बाहर निकालिए। मेरे सोच को पॉजिटिव कीजिए गुरुजी, मुझे अच्छा अच्छा सोचना है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ कर देना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे। लख लख धन्यवाद गुरु जी। सारे साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपके सामने आपके साथ पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथ संगत के शिर चरणों में मेरा कोटि कोटि नंबर। गुरु जी के शिर चरणों में मेरा कोटि कोटि नंबर। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना। गुरु जी मेरा कल शुक्राना नहीं मैं कर पाई, तबीयत बहुत ख़राब है, तो ज़्यादा ही हो गई है, तो बोलने में नहीं जा रहा, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। एक्चुअली बेटे को वायरल था, वो 2-3 दिन ऑफिस नहीं गया, आज तो गया है मजबूरी में। उसको 2.5-3 टेम्परेचर था, मेरे को भी है। मैंने डरती थर्मामीटर नहीं लगाती क्या कितना है, फिर मन में आया था कि हाँ इतना है, इतना है। और आपका जल प्रसाद पी रही हूँ गुरु जी। आपको बेटे बेटे को भी आपने स्वस्थ किया, आपका जल प्रसाद दिया था मैंने उसको। आपका नाम स्मरण करते हुए, महामंत्र जाप करते हुए मैंने उसके सर पर पट्टियाँ भी की थी, और उसको सिर पे हाथ रख के, एक बाजू पे हाथ रख के आपका महामंत्र जाप करती रही थी। उसका बुखार टूट जाता था, उसको सिर दर्द में आराम मिल जाता था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी मैं मन में सोच रही थी, काफ़ी दिनों से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। तो कल जब मैं थी बालकनी में बाहर खड़ी हुई, तो उसी टाइम पे एक गोल्डन सी ब्लैक डॉटों वाली, मेरी ब्लैक थी शायद, गोल्डन डॉटों वाली वो बटरफ्लाई मेरे वो जो प्लांटर्स हैं फूलों वाले उसके पास आई। मैं भी उसके पास ही खड़ी थी, तो वहाँ से घूम के चली गई। आज फिर मैंने देखी, वो उसकी पीली पीली वो येलो येलो जो थी, उसके नीचे वाले पंखों पे वो लाइन थी,
ऊपर से निके निके छोटे छोटे डॉट थे और कलर ब्लैक था। तो जय गुरु जी, आपने ये इच्छा भी पूरी कर दी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका हर टाइम पे शुक्राना करती हूँ कि आप पूरा ध्यान रखते हो। आपने बेटे को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। 2 दिन तो उसको काफ़ी तकलीफ रही, पर आज वो ठीक था थोड़ा। ऑफिस गया है, अब मुझे नहीं पता ऑफिस में उसका क्या हाल है, मैंने फ़ोन नहीं किया। तो मेहर करना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, पति अंकल भी बीमार थे, पर वो इतने बोलते हैं ना, इतना, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों इतने हाइपर, इतने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो सोचते नहीं क्या बोलना क्या नहीं, भी बाकी भी बीमार है, तो उनको भी देखिए गुरु जी, उनका गुस्सा शांत कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे को, छोटे को भी, मैंने छोटे बेटे को फ़ोन किया था, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। गुरु जी, मेरे उससे बात करवा दो प्लीज़, बहुत दिन हो जाते हैं, 20 15 दिन हो जाते हैं, मैसेज भी मुश्किल से करता है, तो बात करने को मन करता है। गुरु जी, गुरु जी आप देखिए, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा। आज मैंने पाठ किया, कल तो नहीं किया था, कल तो मैं भी उसके लिए लगी रही, मंदिर में नहीं जा रही, 2 दिन हो गए। गुरु जी मेहर करो, ब्लेसिंग दो अपनी, 2 क्या 3 दिन हो गए मंदिर नहीं गई मैं जल चढ़ाने। तो गुरु जी प्लीज़ 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 ब्लेस करिए, अपनी कृपा बरसाइए, मेहर बरसाइए। मैं आपका गुणगान करना चाहती हूँ, घर का काम करना चाहती हूँ, पर मेरा शरीर नहीं कर चलता। गुरु जी, मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को ब्लेस कर दीजिए प्लीज़। मैं अपने काम, घर के अपने काम अब खुद कर सकूँ, बेटे पे ऊपर बर्डन न डालूँ। शुक्राना गुरु जी, इतनी ऐसी हालत में भी आप समर्थ बनाए रखते हो, बेटे को इतना बुद्धि देती हो कि वो मेरा कर सके काम, मेरे को हेल्प कर सके, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और तो मेरे पास ना कोई मेड है ना कोई कुछ है, और मुझे बुरा बहुत लगता है। और जब भी किसी को बोलती हूँ ना कि हाँ ये करवाता है मेरा, तो उसको भी नज़र लग जाती है। उसी दिन मैंने टेम्पल में बोला था ये मेरा बहुत ध्यान करता है, तो वो उसको वायरल हो गया, हिले नहीं 2-3 दिन से, मंदिर जा ही नहीं पाए उसके बाद हम। तो जय गुरु जी नेगेटिविटी से, नज़रों से बचाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हाँ सैटरडे है, 2 अगस्त हो गई है, नया महीना चढ़ गया। आपने बोला कि नए महीने के साथ, कल का मैसेज था, इसके साथ ही तेरे सारे कष्ट खत्म कर दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी, जल्दी कीजिए गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शरीर साफ साथ नहीं है, शरीर सही नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इतना सिर फट रहा है गुरु जी। गुरु जी आपका मंत्र जाप करते मैं सुबह से, सत्संग सुने 1-2 ही बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, आज मैं अपना वो गुनाह सामने सबके कहती हूँ कि मैं रीलें देखती रही हूँ, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वो पाठ करके, नाश्ता करके मैं साधना में बैठी थोड़ी देर, पर उसके बाद फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं, स्पैम थी, तो मैं रीलें देखती रही। फिर बीच में थोड़ा सा लेटी हूँ, सोई भी हूँ। अब मैं सत्संग सुन रही थी, फिर मैंने सोचा रात को फिर नहीं होगा, फिर पहले शुक्राना कर लूँ बेटे के आने से पहले पहले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी अपना बल बख्शिए ताकि मैं सारे काम कर सकूं, आपकी सेवा भी कर सकूं। आज तो मैंने आपके स्वरूप को साफ किया, तिलक लगाया, जो जलाई पाठ किया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। इसमें नागा मत डलवाया कीजिए, जैसे भी अमर को उठा के करवा लीजिए करिए। और सुबह आपने उसमें अमृत पल्लव में उठाया, साधना करवाई। शुक्राना 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 गुरु जी, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। हम तो वही शुक्राने करते हैं जो हमारे को सामने होते हैं, और इतने भुलक्कड़ है कि भूल जाते हैं, बाद में याद आता हो गुरु ने ये दिया, इसका शुक्राना करना था। और अनजाने में आप कितनी ब्लेसिंग देते हो वो तो पता ही नहीं ना गुरु जी। तो कान पकड़ के, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, संगत जी से भी, गुरु जी से, आपसे भी, कि आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, हम न शुक्रे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब पता नहीं कौन कौन से कष्ट कैसे कैसे काट देते हो,
हमें बिना बताए। उसके लिए सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को ब्लेस करिए गुरु जी। वायरल बहुत फैला हुआ है, सबको सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, सबको अच्छी सेहत दीजिए, आंटी अंकल को भी सेहत अच्छी दीजिए, सबका भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति पर इतनी नेगेटिविटी हावी है, वो मेरे साथ सारे दिन लड़ाई करते हैं। मैं हनुमान जी का पाठ करती हूँ तो वो बोलते हैं तू पाठ मत कर। मेरे पूरे परिवार की सास जेठानी सब ये तंत्र मंत्र करती है। मेरे पति का सारा दिमाग बस के अंदर कर रखा है। गुरु जी, ऐसी कृपा करो कि मेरे पति को आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, वो हट जाए, वो मेरे घर में सुख शांति हो जाए। बिना मतलब के कलेशबाजी करते हैं। गुरु जी, मैं थक चुकी हूँ गुरु जी। न घर का खर्चा उठाते हैं, न कोई और दारू पीते इतने ना सुना। मैं कहाँ जाऊँ गुरु जी, कोई नहीं सुनता है। मैं थक चुकी हूँ गुरु जी, 26 साल हो गए। घर की औरतें तंत्र मंत्र करने से आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। गुरु जी, ऐसी कृपा करो मेरे पति की तंत्र मंत्र हटा दो गुरु जी महाराज। गुरु जी, इतने दिन हो गए, कष्ट काट दो गुरु जी। मैं पता नहीं कौन सा पाप करती है, मेरे कष्ट करते नहीं। मेरे पति गालियाँ निकालते, गंदी गंदी गालियाँ निकालते। मेरे माँ पापा भी चले गए, उसको भी गालियाँ निकालते। वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी गंदी गंदी गालियाँ निकालते। मेरे लड़कियों भी गालियाँ निकालते हैं, लड़कों को भी गालियाँ निकालते हैं। मेरा परिवार सारा तंत्र मंत्र करता है। मैं क्या करूँ? कहीं जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है गुरु जी महाराज। आप ही साहब, आप भी मेरे पति देव को सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। उनका तंत्र मंत्र दूर करो गुरु जी महाराज। मैं थक चुकी हूँ गुरु जी महाराज। एक दिन भी मैं इस परिवार में सुख से नहीं रही गुरु जी महाराज। गुरु जी, रक्षा करो मेरे परिवार की। मेरे पति देव को सद्बुद्धि दो। मेरे बच्चों को भी सुख से आशीर्वाद दो गुरु जी महाराज। मैं इसी के साथ में ये शुक्राना सत्संग यहीं बंद करती हूँ। मैं राजस्थान से अंजू बोल रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना मंत्र मैं सत्संग यही समाप्त करती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। मेरे से कोई भूल चूक हो तो गुरु कृपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे आप सभी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शनिवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्वाति, मध्य प्रदेश से। तेरे ऊपर एक पति पत्नी मिलकर तेरे परिवार पर जादू टोना करवा रहे हैं। तेरी आंखों में एक बड़ी बीमारी घर बना रही है। एक चीज़ अपनी आंखों में लगाना शुरू कर दे। इस व्यक्ति का चेहरा आज तुझे साफ दिखाई देगा जो तुझ पर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। पहले से आंखों से पानी तो मुझे आंखों की समस्या हो गई है, दोनों में कैटरेक्ट आ गया है। तो गुरुजी का जल प्रसाद वैसे मैं डाल रही हूँ। मुझे पानी भी आने लगे था बीच में, जो कम हुआ है पानी आना। मेरे पितृ मुझसे नाराज़ है, तो मैं गुरुजी ने माफ़ी मांगने का बोला है। तो मैं गुरुजी से, सभी देवी देवताओं से, पितरों से, जो बाल रूप में पितृ बने हैं, उनसे सबसे दिल से, मन से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरे पति और मेरे द्वारा किया गया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। तेरी स्किन एलर्जी को बढ़ने से रोकने के लिए एक काम कर। गुरुजी ने स्किन एलर्जी के लिए बताया है मुल्तानी मिट्टी, नीम का तेल, बादाम का तेल और चंदन, और ये या बेसन भी ले सकते हैं। इन सबको मिला के अप्लाई करना है, उससे एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। और राहु का भी मुझे बताया है गुरुजी ने, तो 40 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से ही नहाने के लिए कहा है, जिससे नेगेटिविटी या जो भी हाथ से या मन में जो भी विचार आ रहे हैं गलत वो नहीं आए। आज तेरे गुनाह की माफ़ी देने आया हूँ। तेरे पेट में सिस्ट है, तू वज़न कम करना चाहती है। तेरे गले में सूजन आ रही है बेटा, तुझे नज़र दोष के लिए उपाय बता रहा हूँ।
गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है नज़र दोष के लिए। राइट पैर में और राइट हाथ में एक काला धागा बांधने के लिए कहा है। बेटी, तुझ पर बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई थी जो मैंने काट दी है। जो तुझ पर अकाल मृत्यु का योग था वो मैंने काट दिया है। इन लोगों को जो करना है पुत्र करने दे। ये सब मिलकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तू महाशिव की शरण में है। तेरी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। तो इसकी रक्षा खुद महाशिव कर रहे हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। बुरा करने वालों की सोच तब बदलती है जब वो खुद को बदलना चाहते हैं, नहीं तो मरते दम तक उनकी सोच वैसी ही रहती है। पर तूने अपने आप को पूरी तरह बदला है। अब तू मेरे कहे अनुसार चलता है, सुबह शाम मुझे याद करता है। अब तू नेक इंसान बन गया है। बेटा, ये भी तेरी परीक्षा का एक हिस्सा है। अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा, एक काम ज़रूर किया कर, अपनी और अपने परिवार की नज़र ज़रूर उतार दिया कर। लोगों की चिंता मत कर पुत्र, उनका काम तो है खुद को अच्छा साबित करना और दूसरे को बुरा साबित करना। तुझे कुछ भी गलत करना है, जो तुझे कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, गालियाँ देते हैं, एक दिन अपनी करनी पर पछताएंगे। मुझ पर भरोसा रख, एक दिन सब तेरे साथ अच्छा ही होना है। तो ब्लैक मैजिक से मुझे कहीं दांत में दर्द हो रहा था और मतलब मुझे असर मुझ पे भी हो रहा था, तो कि डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। सिर दर्द हो रहा था, कान में दर्द, तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो मैं उस मंत्र जाप करा मैंने और मुझे थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मंगलवार को माचिस, लड्डू और 7 पान के पत्ते सिंदूर लगाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पानी में बहाना है या मंदिर में ही चढ़ाना है। तो ये किसी संगत के लिए होगा तो मैं और गुरु में मतलब शेयर कर रही हूँ गुरुजी की बातें आपके सामने। तो बेटे पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जो मैं सत्संग अपनी बेटी के बारे जो मैंने पहले भी कर रखे हैं उसी के बारे में कर रही हूँ कि बेटी की दवाई चल रही है। और जो गुरुजी ने किया, जो गुरुजी ने जहाँ जवाब दे दिया था, बख्शी नगर जो जम्मू बड़ा अस्पताल है, इन्होंने जवाब दे दिया था। और जो मतलब लुधियाने वाले भी 4-5 दिन जवाब दे दिए थे। और गुरुजी नहीं आते, गुरुजी हमारे सिर पर हाथ नहीं रखते। उसका कोई बचने का कोई मतलब कोई चांस नहीं। और गुरुजी जो है, गुरुजी जे आगे जितना हो सकता आगे शेयर करना, जो भी सुनेगा कि जो उसको ऐसे मरी हुई बच्ची को उन्होंने बचाया हुआ है, उसका कोई बचने का ढंग नहीं था। उसको मतलब जो गले में पाइप, मुंह में पाइप, मतलब नाक में पाइप और पेट के कलेजे में पाइप और पेशाब के रास्ते पाइप, लैटरिन में पाइप। और ऐसे करके हे भगवान, हे मेरे गुरु महाराज कि जो मेरी बहन जो उन्होंने भी नया किसी से मतलब जब किसी ने बताया था ऐसे गुरुजी को आप ऐसे करो, तो उन्होंने 1-2 महीने हो गए था गुरुजी का नाम लेते लेते उन्होंने वो घर में जो शुक्राना सत्संग करवाया था। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया था कि मतलब ऐसे रोते रोते कि आप ऐसे करो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी का नाम जपो। ऐसे गुरुजी जो है शुक्राना, ऐसा मैंने पहले भी सुना था मतलब दिमाग में। जैसे हमारे गुरुजी पहले हम बाबा लाल जी को मानते थे, फिर उनका नाम तो नहीं लिया था बाबा लाल का। मेरा जो बेटा बेटी है बाबा लाल के वहाँ से ध्यानपुर के जो वहाँ नहाने से जो पूजा करने से जैसे होता मतलब, तो बाबा लाल। फिर ब्रह्म ऋषि कुमार जो हमारे गुरु, उन्होंने नाम दिया था। कोई देवी देवता कोई कुछ नहीं आया वो टाइम, भगवान किसी के लिए नहीं। जो सुनेगा, जो माँ बाप होते हैं, जो भाई बहन जिसके घर का सदस्य जो मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और जब जैसे एक अचानक उसको ऐसे हुआ जो
जो अंदर पैंक जो पैंक्रिया होती है उसके अंदर कोई एक वो होती है क्या, उसके अंदर जो नाड़ होती है वो फट गई थी पत्थरी से वो फट गई थी मतलब। तो इतना मतलब जो है कोई भगवान गुरु जी ने इतने धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने चलो कोई नहीं पैसा लगा, चलो उनका अभी भी लग रहा है पैसा, और चलो शुगर अभी भी शुगर के इंजेक्शन लगते हैं, और गुरु जी ने उसकी जान बचा दी। लख लख वारी शुक्राना, 100 वारी शुक्राना, करोड़ करोड़ वारी शुक्राना मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। अभी भी धीरे धीरे वो सबको ऐसे, मैं भी अभी थोड़ी ठीक नहीं रहती हूँ, बस चलो धीरे धीरे उनका है, एक दिन वो सबको ठीक करेंगे। फिर भी शांति बहुत है। जैसे छोटी सी बात होती थी हम घबरा जाते थे, पहले छोटी सी बात होती थी ना कोई घबरा जाते थे। अभी 100 दुख भी होगा तभी मन में शांति है, कोई बात नहीं है तो ठीक है, हो जाएंगे, ठीक नहीं हुए तभी कोई बात नहीं। जो मतलब घर में जो है ना, जो बहुत कुछ बहुत लाइन बलाई होती है इंसान के पीछे, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। कई लोग फांसी भी लग जाते हैं, छोटी सी बात से लेकर ख़त्म कर देते हैं अपनी ज़िंदगी। नहीं, जहाँ गुरु जी का हाथ होगा वहाँ सब ठीक होगा। और मैं बहुत दिन हो गए कुछ ऐसे ही, पता नहीं गुरु जी की मेहर होगी, गुरु जी की मर्जी होगी, जिसके कारण मैं सत्संग में नहीं कर पाई हूँ। मैं सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, गुरु जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या पता नहीं, मैंने बहुत दिन हो गए मैं सत्संग नहीं कर पाई हूँ। और जो है गुरु जी नहीं आते थे तो हमारे दिन आज पता नहीं कैसे होते थे, पता नहीं कि हमारे घर में क्या होना था, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद हमारे घर के बाहर जब लड़की बीमार थी, घर के बाहर चमगीदड़ जल के, कबूतर जल के, चिड़ियाँ जल के, ऐसे तार की शार्ट लगने नहीं दे रहे। घर के अंदर जो पाइप होती है बाथरूम की, किचन की होती है, वहाँ उनकी स्मेल आती, वो कहीं पार्क में उनको आग लगती थी, और वो हमारे अंदर पता नहीं क्या कर रखा था, और क्या पता कुछ बीमारी भी हो गई, नहीं पता नहीं किसने क्या कर रखा था। और बहुत सालों से लड़ाइयाँ भी झगड़े भी बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा, पहले बहुत झगड़े लड़ाइयाँ बहुत कुछ। और शुरू से तो मैं सुनाऊँगी तो तब तो मेरी ज़िंदगी, तब तो भाई कितने साल लगेंगे। जो कुछ हमारे जन्म से हुआ है वह चलो, मैं कभी मेरे को टाइम ऐसे होगा जब देखूँगी गुरु हमारी मेहर होगी तो बचपन से मैं शुरू करूँगी कि कोई सत्संग का कोई हिसाब नहीं है, सत्संग तो इतने बहुत ज़्यादा है। और बस गुरु जी को बस यही बोलती हूँ, शुक्राना। जो अपलोड करते हैं आगे उनके लिए भगवान, उनके घर कोई दुख ना होए, उनके घर खुशियाँ हों, हर घर दिवाली होए, हर टाइम उनके घर रामनवमी होए, हर घर उनके खुशियाँ होए, भगवान उनके घर कभी कष्ट नहीं होए, उनके अच्छे दिन, जो भी उनका कष्ट दूर करे, जो सुनेगा उसका कष्ट दूर होए। गुरुजी आप मेहर करनी, जैसे हमारे पर करिए, हमारे घर परिवार पर करिए, सब पर मेहर ऐसे करे। गुरु दी मेहर सब पर है। गुरु जी नहीं आते कि गुरु जी ऐसे दयालु पिता परमेश्वर है ना, सबकी सुनते हैं, पता सबकी सुनते हैं, सबको देखते रहते हैं, सबके जो इतने मेरे आते हैं कि तू टेंशन मत लो, ये मत करो, मतलब ऐसे मत करो, ऐसे टेंशन मत लो। मतलब जैसे अपने माँ बाप भी इतना समझा नहीं सकते या इतना साथ नहीं दे सकता कोई, कि जो जैसे गुरु जी हर घर जहाँ भी गुरु जी के संगत होगी, जहाँ गुरु जी को याद करते गुरु जी वहाँ हाजिर हो जाते हैं। हे पिता परमेश्वर सबका भला करे, सबके घर किसी चीज़ की कमी ना रहे, सुख शांति होए, सब कुछ घर में होए, मालका सबके बच्चे जीण ब्लेस करो, उनकी सेहत ब्लेस करो, सबसे बड़ी सेहत अच्छी होनी चाहिए, चाहे थोड़ा खाओ थोड़ा लाओ, शरीर ठीक होना चाहिए। बस बीमारियों से है गुरु मारी, सबको अच्छा गुरु जी का नाम लो, और फालतू बातें कोई किसी का नहीं है, बस कोई किसी से ज़्यादा प्यार मोहब्बत गुरु जी के नाम जपो, बस मेरे ईश्वर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे ईश्वर, आप नहीं आते तो हमारा पता नहीं क्या होता। हे ईश्वर, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, सबकी लाज रखो मालका, सबकी लाज रखो परमात्मा, सबके दुख दूर करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु महाराज जी इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज जी जब मैसेज देते हैं टेलीपैथी से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे साक्षात बात कर रहे हैं संगत जी। मैंने अभी 5 बजे अपना शुक्राना किया था गुरु महाराज जी का संगत जी। मैं अभी थोड़ी तबीयत ना ठीक होने के कारण मैंने आज जोत बत्ती वगैरह नहीं करी और मैं लेटी हुई थी। और फिर मेरे फ़ोन चलाते हुए कि गुरु महाराज जी का फिर से मुझे वह मैसेज आया और गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, तो बार बार ही मैसेज इग्नोर कर देती है, पता नहीं होता किस मैसेज से तेरा कल्याण हो जाए। संगत जी मैं सारी अपनी संगत परिवार के साथ यह गुरु महाराज जी का मैसेज साझा करती हूँ। टेलीपैथी से जो गुरु पिता ने मैसेज दिया मुझे संगत जी, मेरे गुरु पिताजी मुझे कहते हैं आंटी मेरी आंखें देख सकती है, तो उठी है और फ़ोन चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और मैं यहाँ कब से तेरे एक शुक्राने की बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आंटी इतना मेरे संदेशों को अनदेखा मत किया कर। तुझे नहीं पता कौन सा मैसेज तेरी सोई किस्मत के सितारे फिर से चमका दे। चल अब सोन ता पहला एक शुक्राना ज़रूर कर, ये तेरे प्यो का कड़क आदेश है। शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिका संगत जी। ये मैं बेडरूम में ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ अपने गुरु पिताजी का संगत जी। इस समय 8 बजने में 1 मिनट है, 7:59 हो गए हैं और गुरु महाराज जी ने कहा कि सोने तो पहला चल एक बार शुक्राना ज़रूर कर दे। तो मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से सच्चे दिल से शुक्राना 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 अंतरात्मा से शुक्राना मैं अपने गुरु महाराज जी का, अपने गुरु पिता का, महाशिव का, देवों के देव का मैं शुक्राना 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 करती हूँ। और संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे टेलीपैथी से ये भी कहा कि संगत जी अभी 1 सेकंड में पढ़ के बताती हूँ कि गुरु महाराज जी ने कहा कि तेरे भाई नो मैं ब्लेस करता हूँ, इस रक्षाबंधन तक उसके सारे काम बन जाएंगे। अपने भाई नो कहीं ज़्यादा चिंता ना करनी, यह मेरी ब्लेसिंग उसनों भेज दे। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु परमात्मा, आपके हुक्म के अनुसार मैंने अपने भाई को जो आप ही का बच्चा है मैंने आपके भेज दिया है मैसेज। गुरु महाराज उसको भी ब्लेस करना, जो भी उसके ज़िंदगी में परेशानी है, बहुत सी परेशानियां उलझनों में फंस रखा है, उसका अपना दिमाग ही नहीं कुछ काम कर रहा है कि वह अपनी ज़िंदगी को जो कि अच्छे से जिए, बहुत मज़ेदार में फंसा हुआ है। मेरे गुरु पिता उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। मेरे गुरु पिता एक ही 4 बहनों का एक ही भाई है, आप उस पर अपनी कृपा बरसा दो, अपना दया का हाथ रख दो, दया कर दो मेरे गुरु पिता। वह आपके महादेव रूपी को मानता है। हे मेरे गुरु पिता, है मेरे गुरु परमेश्वर, वह आपको भी अब धीरे धीरे मानने लगा है। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बख्श दो। जय गुरु जी, सुख भर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे काफ़ी टाइम से मुझे यह मैसेज आ रहा है कि जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप मेरा प्लीज़ संगत परिवार, संगत आंटी जो मेरा सत्संग अपलोड करती हैं, पहले मैं उनको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आंटी मेरा हर रोज़ ही सत्संग अपलोड जल्दी से कर देती है। गुरु महाराज आपको आंटी जी भर के ब्लेसिंगें दें, आपके हमेशा आपकी
आप पर अपना आशीर्वाद गुरु पिता बनाए रखे। मैं गुरु महाराज जी का तहे दिल से मैं गुरु महाराज आपके लिए विनती करती हूँ। और संगत जी, आप जो आंटी मेरी या संगत परिवार, ये मेरे गुरु पिता परमेश्वर, या मेरी आंटी जो सत्संग, आंटी प्यारी आंटी जो सत्संग अपलोड करती हैं, कि जो मैं ये पढ़ के मैसेज सुना रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है कि लंगर प्रसाद कैसे लगवाना है, कि लंगर का प्रसाद लगवा अपना, और फ़ोन नंबर लिखा होता है, तो हमें वो फ़ोन करके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि ये गलत मैसेज हो, तो मेरा प्लीज़ संगत परिवार और आंटी जी मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। गुरु पिताजी किसी भी तरीके से आप भी मेरा मार्गदर्शन करना। संगत जी, मैसेज है, पुत्र आज शनिवार के दिन तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। मैं तुझे वो सब देने आ रहा हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं करी। आज से तेरा काम और अच्छा होने जा रहा है बेटा, सब ठीक होगा। काम में बरकत करने आ रहा हूँ आज तेरे घर नो। बस संगत जी को कॉल करके मेरे नाम का लंगर प्रसाद लगवा। अभी कॉल कर पुत्र। और मैं फ़ोन नंबर है आंटी जी, संगत जी, 8854883232। संगत जी, यह नंबर मेरे को बार बार फ्लैश होता है गुरु महाराज जी के मैसेज के साथ। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमें क्या मुझे इस फ़ोन नंबर पर लंगर लगवाने के लिए संपर्क करना चाहिए या नहीं। प्लीज़ संगत परिवार, मेरा यह मार्गदर्शन करना, मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिले। जो आंटी सत्संग आंटी हैं, जो सत्संग अपलोड करती हैं, प्लीज़ आंटी आप भी मुझे अगर ये इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दे सको तो यह मेरा मुझे ज़रूर देना। मुझे बहुत बार ऐसे आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे गुरु पिताजी मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे इस क्वेश्चन का किसी भी तरह मुझे आप जवाब दिलवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने गुरु महाराज जी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, आपके हुक्म से ही हम शुक्राना कर पाते हैं, नहीं तो हम वो भी सोचते रह जाते हैं। हे मेरे गुरु पिता, मेरा जो भी है शुक्राना, जो भी संगत प्यार परिवार सुने, उनका सबका कल्याण ही कल्याण करना, सबको हेल्थ वेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, मेरी संगत प्यारी संगत परिवार, अगर कुछ मेरे से बोलने में त्रुटि भूल गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, थोड़ा एक ये भी मेरा एक क्वेश्चन और है मेरे गुरु पिताजी के चरणों में और अपनी संगत प्यारी परिवार से, कि मेरे को जो भी टेलीपैथी से मैसेज आता है तो उसमें यही होता है कि शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राना बोल के तो मेरे गुरु पिताजी भी, गुरु पिता आपका मैं बोल कर करती हूँ कि हर बार सत्संग जैसे दिन में 5-6 बार या 7-8 बार ऐसे गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग देते हैं हमें और शुक्राना करने को कहते हैं। क्या हमें हर बार मैसेज अपना रिकॉर्ड करना चाहिए, शुक्राना रिकॉर्ड करके करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? प्लीज़ आप संगत प्यारी आंटी जी, मेरे गुरु पिताजी, मेरे को इस क्वेश्चन का भी मेरे को आप जवाब ज़रूर देना, दिलवाना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हर पल मेरी रक्षा करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, न्यू लाइफ देने के लिए आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बम बम बोले, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है और अभी रात के 8:23 हो रहे हैं। दिन शनिवार है
और संगत आंटी जी क्षमा कीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा था, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी उस टाइम क्योंकि मेरे अंकल जी आ गए थे, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा, आप जो बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। और गुरुपा के पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग है, उनको भी स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र तेरा कोई रिश्तेदार तुझसे बहुत चलता है। हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, उसने तुझ पर ब्लैक मैजिक कराया है। आज इस सत्संग में उसका उपाय बता रहा हूँ, इसे अनदेखा मत कर। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने सत्संग सुना और सत्संग सुना के जो कष्ट कटवाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आज एक सत्संग हुआ, गुरुपा ने बहुत बड़ा सत्संग किया जिसके लिए मैं गुरुपा का करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज बेटा को बुलाया था, पैसा निकालना था, तो मेरे अंकल जी ने कहा था सुबह 8 बजे, लेकिन वो 8 बजे नहीं आया था, बहुत लेट से अभी शाम को आया था। तो अंकल जी को सुबह से गुस्सा आ रहा था और अंकल जी का आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत कलेश करते हैं। मैंने गुरुपा से अरदास करके रखी थी कि प्लीज़ गुरुपा आज कुछ घर में छोटी छोटी बातों के लिए कलह ना हो, उसके लिए। और ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंकल जी शांत रह गए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। नहीं तो आज भी कलह हो जाता है बेमतलब का। अंकल जी ऐसे ही, उसको मौका चाहिए घर में कलह कलश करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। और गुरुपा बेटा अंदर नहीं आया, गुस्साया हुआ है, इसलिए बाहर से ही चला गया है। तो गुरुपा आप देख लीजिएगा उसके ऊपर जो भी संकट है और जो भी उसके ऊपर कोई जादू टोना किया हो तो सब काट दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा मैं अपने तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपने पुत्रों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, सभी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। मैं सभी जीव जंतुओं की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मैंने आपसे कुछ अरदास की है, प्लीज़ गुरुपा उसको पूरा कर दीजिएगा। और गुरुपा बच्चों पे कभी आँच ना आए, यही अरदास करती हूँ। हर मुसीबत हर संकट से बचा के रखिएगा, बच्चे कभी गलत राह पे ना चले मेरे मालिक, आप संभाल लीजिएगा। आप ही उनके गुरु पिता माँ हैं, सब कुछ आप ही हैं, तो आप देख लीजिएगा। और गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना है, हर पल हर क्षण का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा संगत जी आंटी जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और सभी का भला हो गुरुपा, सभी को आशीर्वाद दीजिएगा और सभी जीव जंतुओं पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जो भी कुत्ता गाय है उनको भी खाना मिले, उनको भी हर मुसीबत संकट से बचा के रखिएगा गुरुपा। आप ही हैं जो परमेश्वर परम पिता हैं, जो सबको देख सकते हैं, आप ही को सब कुछ पता है कब किसको क्या ज़रूरत होगा। तो गुरुपा प्लीज़ सब देख लीजिएगा, सब आप ही को संभालना है। और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।